students, and a very hearty welcome to the English world of Aradhya. Myself, Rashmin sir, teaching you all English to the students of 9th standard to 12th standard. Here, if you remember, last time we had started the second lesson from your book Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anish Jung. In that I had also given you the information about the author, and I told you there are two stories, one is of Sahib and one is of Mukesh, and here we had begun the Sahib story. Okay, Sahib, in which sort of poverty he was living. He was basically a rag picker, and we also came to know his encounter with the author, how author would talk to him and ask him to change certain things, but it was not in his capacity. Okay, they were so poor, there was no school around, so he could not even go to school. Then finally we had seen that he moves in a group of the other boys of his age barefoot. They don't even have money to purchase the chappals. Okay, so till then we had seen. Now we will continue from there. I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple. Now this is the story of another man from UDP. It is not Sahib's story. Okay, where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. We demand different things from God, and here students see these people's demand, very nominal demand. What he prays to God? He prays to God for a pair of shoes, कि God एक pair of shoes दिला दे बस. इतनी सामान्य डिमांड है उनकी गॉड से प्रेयर में. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. After 30 years, the same town was just drowned in the air of desolation. Means all over the town you could see only miseries. People were leading a miserable life. They could not get even sufficient food for 2 times. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting yani hafta hua, breathing very fast, and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. जब इसने ये बैग आके फेंकी, बराबर, तब वो बॉय को देख के राइटर को एक दूसरा लड़का याद आया जिसने गॉड को प्रेयर की थी. कब की थी? When he got the pair of shoes, जब उसको ये शूज जूतों की पैर मिल गई तब उसने की थी. Let me never lose them. So how precious these shoes are for them. हमारे यहाँ शूज लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, थोड़े पुराने होते हैं, then we start disliking them. Now we want new one. Okay, here what is the prayer of that boy, one who has got the pair of shoes, कि let me never lose this pair. ये पैर मैं कभी नहीं खोऊं गॉड, तो हमेशा इसकी केयर रखना. Okay, the goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. ये priest का लड़का है तो थोड़ा हाई कास्ट कम्युनिटी का है, तो इसके जैसे लड़के बोले अभी यहाँ शूज पहनते हैं. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. So this particular boy was from a high community, priest's son. So other children like him from the high community, they were wearing shoes, but the rag pickers were still shoeless. अभी भी उनके पास जूते थे ही नहीं. Okay, now we will talk about their entire community of rag pickers. How many people are living in which sort of condition in Simhapuri at the same place. Okay, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simhapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. ये क्या है? दिल्ली की बॉर्डर में ही आया हुआ है सीमापुरी. Okay, now in Simhapuri, in periphery of Delhi. But if you go to that particular place, it will look very far away from Delhi.
दिल्ली से ही तुम वहां जाओ तो भी तुम्हें बहुत दूर लगेगा, बराबर। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहां जो लोग रहते हैं उनको क्या कह के बुलाते हैं? दे आर ऑल स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स क्यों? स्क्वेटर्स यानी अपने पैरों के ऊपर बैठने का, अंडरस्टूड? जैसे एज इफ यू आर सिटिंग इन एन इंडियन टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में बैठते हो तो कैसे बैठते हो? अपने पैरों पे। तो हियर मोस्ट ऑफ दिस पीपल have formed that habit because when they go for rag picking work or searching something in the garbage, they have to sit like that. So they all have formed this habit of sitting on the feet. That's why they are all known as squatters, who came from Bangladesh back in 1971. ये सब लोग कहाँ से? बांग्लादेश से यहाँ आए थे, ओके, दिल्ली में। Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. At that time, Simapuri was what? Very barren land. Nobody was there. Wilderness means very barren land. It still is. अभी भी वैसा ही है, but it is no longer empty. In 1971, when these people came, that time it was completely barren land. Even no animal, no birds, no people could be seen. अभी भी वो barren जैसा ही लगता है, but at least some people are staying over there. Okay. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. तो कितने लोग रहते हैं यहाँ ऐसी जगह पे जहाँ क्या है? झोंपड़े हैं मड के, उसके ऊपर क्या है? टीन का या टारपोलिन यानी कैनवास का रूफ है। ड्रेनेज सिस्टम, सुएज सिस्टम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पानी की लाइन, गटर लाइन ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ओके। फिर भी यहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ ये लोग कितने 30 साल से रह रहे हैं। एंड दैट्स वाई लास्ट ईयर आवर इंडियन गवर्नमेंट केम आउट विद दैट न्यू आइडिया, ओके, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। तो तुम इंडिया के हो वो बताओ, ये यहाँ इतने साल से रह रहे हो। बिकॉज लाइक दिस पीपल आर प्लेंटी इन इंडिया हु डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, हु हैव कम फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू इंडिया एंड स्टेइंग इन इंडिया इलीगली। एंड व्हेन दे कम, दे विल गो फॉर द वर्क, दे विल बी रेडी टू वर्क एट द लोअर वेजेस ऑल्सो, देन आवर ओन पीपल मे नॉट गेट द वर्क। तो वो लोग आ गए, उनकी वजह से फाइनल आउटकम में भी दिस कि हमारे खुद के लोगों को क्या है? काम नहीं मिला, तो पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो उनको भी भूख मरना पड़े, हमारे लोगों को, इंडियंस को। इसलिए उन्होंने लास्ट ईयर गवर्नमेंट केम अप विद दैट पर्टिकुलर बिल NRC कि भाई यहाँ सभी को अपना इंडियन है वो पूरा देना पड़ेगा, ओके। Devoid of sewage, drainage and running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड है ही नहीं, पान कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा कोई कार्ड है ही नहीं। विदाउट परमिट्स, और ये परमिट लेके भी नहीं आए। इफ़ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, यू गो ऑन द स्टूडेंट परमिट, okay, you go on job permit like that, but here they have no permit, they have simply entered. And the reason I told you why, because on India Bangladesh border there is hardly anything like border, anybody can go to that side, anybody can come to this side. वहाँ बॉर्डर पुलिस या मिलिट्री इतनी है ही नहीं, खुद उनको एक साथ एक लाइन में नहीं बिठा सकते, तो फ्रॉम एनीवेयर दे कैन एंटर, ओके। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years. Food, yes, wait, without permits but with ration cards that get their names on voters list. The only thing they have means they have managed through some way or the other to get their names in ration card. They have got that ration cards, okay, and because of that ration cards now they are getting their names in the voters list also, okay, voting card, and enables them to buy grain. And this thing only will enable them, will make them able to purchase the grain. Food is more important for survival than an identity. That is true. जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? सांस लेना, वो तो हमको फ्री में मिलती है। दूसरा क्या जरूरी है? खाना पीना, बराबर। तो ये लोग मानते हैं कि फूड इज मोर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन
आइडेंटिटी, भले हमारी पहचान कोई नहीं हो, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in a tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. फिर हमारे राइटर ने वहाँ की जो औरतें थी उनको भी पूछा कि you people have come from Bangladesh and Bangladesh, the part you came from, that was very greenery over there. ओके, ग्रीन फील्ड्स थे, तो ऐसी अच्छी जगह छोड़ के क्यों आए? सो व्हाट इज देयर रिप्लाई कि एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम हमारे फैमिली को खिला पिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, यानी भूखे पेट हम सोए नहीं, यानी भरपेट सोए, खाना खा के सोए, देन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, वी वुड रादर लिव हियर, अगर इतना मिल जाता है तो हम यहाँ ही रहेंगे, उससे अच्छा कि हम वहाँ जाके नहीं रहेंगे. टू द फील्ड्स, आवर ओन फील्ड्स, वेयर दे गेव अस नो ग्रेन, जहाँ कोई दाना भी नहीं मिलता है तो वहाँ जाके क्यों रहेंगे, यहाँ हमें खाना पानी मिल जाता है, तो वी वुड प्रीफर टू लिव हियर. ओके, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes. Some of them are moving in the tents, कारवा बोलते हैं, जहाँ भी उनको थोड़ा खाना पाना मिल गया वहाँ वो अपने टेंट्स लगा देते हैं. Okay, so that those tents then become their transit homes. Transit homes means temporary homes. Okay, children grow up in them, becoming partners in survival. उनके साथ चिल्ड्रन भी वहाँ उनके साथ ग्रो होते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ उनके बच्चे जाते हैं. ओके, एंड दे ऑल्सो बिकम द पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जिंदा बच्चों में लोगों में वो भी पार्टनर बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. सर्वाइवल यानी अगर उनको जिंदा रहना है, सीमापुरी एरिया में जिंदा रहना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रैग पिकिंग करना पड़ेगा. उसके अलावा और कोई काम ही नहीं है उनके पास, तो जिंदा रहना है तो रैग पिकिंग काम करना पड़ेगा. एंड रैग पिकिंग ऑल्सो मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल. फॉर चिल्ड्रन इट हैज डिफरेंट मीनिंग, एंड फॉर एल्डर्स और पेरेंट्स ऑल्सो दे हैव डिफरेंट मीनिंग. ओके, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years it has acquired the proportion of a fine art. बरसों से ये लोग यही काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं. तो यहाँ रैग पिकिंग एक प्रकार का एक फाइन आर्ट बन गया है. रैग पिकिंग में भी एक कला हासिल कर ली है कि कैसे रैग पिक करने का, कैसे उसमें से ढूंढने का. इफ the people like you or I start that work, we will not be comfortable in that. We don't know anything about it. पर ये लोग बरसों से कर रहे हैं, तो रैग पिकिंग का भी उनको क्या है, उसमें एक आर्ट आ गई है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. हम लोग कचरे को कचरा ही समझते हैं, इन लोगों के लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड समान है, सोने जैसा है. इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स. अगर गार्बेज नहीं है तो उनको डेली ब्रेड नहीं मिलेगी, उनके ऊपर छत नहीं रहेगी. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले रूफ जो भी है उसमें से लीक हो रहा है पानी बारिश की मौसम में, फिर भी छत उनके लिए, वो वैसे भी छत उनके लिए बहुत मायने रखती है. ओके, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. बड़ों के लिए ये है, पर चाइल्ड के लिए रैग पिकिंग क्या है, उससे भी कुछ ज़्यादा है. ओके, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट. कई दफ़ा मुझे ये शाहिद बोलता है कि मुझे कई दफ़ा 1 रुपया भी मिलता है, 10 रुपीज़ की नोट भी मिलती है. हिज आइज लाइटनिंग अप. जब ये ऐसा बोलता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि सिर्फ कतरा ही नहीं उठाते, कई दफ़ा पैसे भी मिलते हैं. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग यानी सर्चिंग. अगर तुम्हें गलती से ये गार्बेज में एक सिल्वर कॉइन मिल गया, चांदी का सिक्का, तो क्या करोगे? तुम ज़्यादा ढूंढते रहोगे कि शायद दूसरे भी हो. ओके, दैट्स व्हाट ऑल द चिल्ड्रन ओवर देयर आर डूइंग. फॉर देयर आर होप्स ऑफ फाइंडिंग मोर. देखो, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर. चिल्ड्रन के लिए क्या है एक रैग पिकिंग का काम? एक
वंडर जैसा है, अ गिफ्ट जैसा है कि खोलोगे अंदर से क्या निकलेगा, वी डोंट नो। अंडरस्टूड? सो इट इज लाइक समथिंग रैप्ड इन वंडर। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़े लोगों के लिए क्या है, जिंदा रहने का एक साधन। रैक पिकिंग करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो उससे हम हमारा घर का गुजारा कर पाएंगे। ओके। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब वहाँ आगे एक क्लब भी आई है, तो वहाँ ये साहिब खड़ा था। एंड राइटर नोटिसेस हिम स्टैंडिंग एट द फेंस्ड गेट। फेंस्ड गेट, वहाँ जाली मार दी है, वो फेंस है बनाई है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। What was he doing? He was watching the game of tennis being played by two boys and they were dressed in white. टेनिस में पहले हर एक गेम में स्टूडेंट्स, इफ यू सी अर्लियर देयर वर वाइट क्लोथ्स ओनली। अभी भी टेस्ट क्रिकेट में देखो तो टेस्ट क्रिकेट में वाइट कपड़े ही पहनते हैं। ओके, पहले वनडे में भी वाइट कपड़े थे, तो वैसे टेनिस में भी पहले वाइट कपड़े थे, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा चेंज आया, लोग कलर टी शर्ट और वो सब पहनने लगे। ओके, टेनिस मीन्स द गेम ऑफ द प्लेयर्स लाइक टेनिस तुम्हें पता नहीं है तो मैं बताऊँ, इट इज़ अ गेम प्लेड बाय रोजर फेडरर, राफेल नडाल। ओके, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ये नाम तो सुने ही होंगे, दैट इज टेनिस। ओके, बड़ा रैकेट लेके खेलते हो। ओके, सो हियर टू बॉयज वर प्लेइंग दैट एंड साहिब वॉज वॉचिंग फ्रॉम द गेट आउटसाइड प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम, ही हम्स content to watch it standing behind the fence। क्या बोलता है? He likes the game, but what he likes in the game, what he likes only watching the game, not playing the game, क्योंकि playing करने का तो वो सोच ही नहीं सकता। If he wants to play, he will have to purchase the white dress, he will have to purchase the racket, he will have to purchase the ball, he will have to purchase the net। ये सब करना पड़ेगा तब वो गेम खेल पाएगा। इसलिए वो क्या है, ही इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, जस्ट वॉचिंग द गेम। कई लोगों को गेम दो तरीके से अच्छी लगती है, कई को खेलने में अच्छा लगता है, कई को देखने में अच्छा लगता है। सो हियर ही इज कंटेंट वॉचिंग द गेम फ्रॉम द आउटसाइड बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। कई दफ़ा वो अंदर ही भी जाता है, कब? जब ये टेनिस प्लेयर्स वहाँ नहीं होते हैं तब। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। वहाँ जो झूला है, तो वहाँ जो गेट कीपर खड़ा है वो अलाउ करता है कि तुझे ये झूला इस्तेमाल करना है तो कर। ओके, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब उसको भी कहीं से शूज मिल गए, बट वो शूज कैसे लगते हैं? थोड़े विचित्र लगते हैं। इट लुक स्ट्रेंज, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसने जो चड्डी पहनी है शॉर्ट्स, और जो शर्ट पहना है वो कैसा है? वो सब डिसकलर्ड है, बहुत पुराने हैं, तो उसके ऊपर ये जूते थोड़े ऑड लगते हैं। ओके, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, समवन गेव देम टू मी। समझाता वो वैसे वो बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। ये क्या है? किसी के फेंके हुए, कोई रिच बच्चे के फेंके हुए शूज थे, क्यों? उसमें से एक में होल हो गया था, तो ऐसे जूते इसके हाथ में आए, और इसके लिए तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी, ऐसा है। ओके, यस, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अब इसके पास ऐसे फटे हुए एक जूते में होल है, ऐसे जूते साहिब को मिले, पर उसको तो उसकी परवाह नहीं है। उसके लिए इतने जूते भी बहुत काफ़ी है। जहाँ मिलते ही नहीं थे, चप्पल नहीं मिलते थे, उसकी जगह शूज़ मिल गए, फिर भले ना वहाँ होल हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुले पैर चला है चप्पल के बगैर, उसके लिए तो ऐसे जूते विद अ होल इन देम इज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सपना सच हुआ हो वैसा है उसके लिए। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच। मैंने कहा जो गेम वो देख रहा है वो खेलने का तो उसकी रिच के बाहर है, उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग, नाउ फ्रॉम हियर वी कम टू नो द सेकेंड पार्ट अबाउट साहिब।
Up till now he was doing the rack picking work. Now he has changed his work. Now he is working at a tea stall. I have written over there. Now he is working at a tea stall. So what problems does he face over there? Is he happy with that work, or was he happy with the earlier work? That we will see. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. Canister yani that particular vessel to carry the milk. I now work in a tea stall down the road, he says, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. वो राइटर को बोलता है कि अभी मैं वहाँ जो टी स्टॉल है, चाय की किटली, चाय का दुकान, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. तीनों टाइम का उसको खाना मिलता है और वहाँ 800 रुपये वो महीने के एंड में सैलरी मिलता है. डज ही लाइक द जॉब? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. So this question is asked. Is he happy in his new job? So here a writer tells us कि he was getting 3 times meal plus 800 rupees, which he was not getting in the rack picking work. But then also here he doesn't look happy. Why? He has lost the carefree look. रैक पिकिंग का काम उसके खुद का था, जब चाहे तब करे, बराबर, इतना हार्ड काम नहीं था. अभी एट टी स्टॉल वॉट एवर हिज मास्टर सेज ही विल हैव टू डू इट. जो भी मालिक बोले वो सब करना पड़ेगा. एंड दैट स्टील कैनिस्टर इज सिंपली अ बॉय. ओके, 11-12 साल का बच्चा है, उसके लिए ये स्टील कैनिस्टर भरा हुआ उठाना भी बहुत हैवी पड़ता है. ओके, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. See in the picture he is shown carrying the plastic bag. वो एकदम इजी रहता है जिसमें कचरा उठा के डालता है वो, और ये स्टील कैनिस्टर तो बहुत हैवी पड़ता है. द बैग वॉज हिज. दूसरा क्या था? बैग खुद की, उसकी खुद की थी. स्टील कैनिस्टर किसका है? किटली के मालिक का. ओके, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. फाइनली दिस इज द फैक्ट. He has changed his profession. Now he is working in a tea stall, but there he has lost the carefree look. That canister is too heavy. Even though he is paid well, he is given 3 times meal, then also he is not happy because he is no longer the master of himself. अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, उसका मालिक कोई और बन गया है. कौन? वो चाय वाला, जो चाय की किटली जिसकी है, टी स्टॉल का जो मालिक है, ओनर ऑफ द टी स्टॉल हैज़ बिकम हिज मास्टर. So whatever owner of the tea stall says, he will have to carry. So here students, we end your first story of this lesson, and that talks about the particular character Sahib and the children like him who were doing the rack picking work. Okay, I hope you have understood it quite nicely and you will be able to solve all the exercises based on that. Just go through the lessons once again students, because as I told you, the punctuation marks, fill in the blanks or comprehension can be asked from anywhere in the lesson. Understood? When we meet next time, we will take the second story of this lesson, which is about Mukesh, that is of a different place, that is of Firozabad. Okay? Till then, stay fit, stay fine, have a good day.